Good morning, everyone. Today we are going to start lesson number 6, that is the Oath of Swaraj. Straight away, we will read out the points. That is, first is the temple at Raireshwar. To the southwest of Pune, there is a beauty spot called Raireshwar, famous for its temple. In the year 1645, an extraordinary event took place there. Shivaji and a few Mauras from the neighboring valley had gathered there. Why had they come to this lovely spot hidden in deep forest? What did they discuss and what favor did they ask of लॉर्ड शिवा? तो देखिए टेम्पल रायरेश्वर जो है विच इज़ इन द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे, यहाँ पर शिवाजी महाराज और कुछ मावड़ा जो थे वो गैदर हुए थे। देखा जाए तो ये रायरेश्वर टेम्पल जो है ये बहुत ही घने जंगल में है और वहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग फिक्स की और वहाँ पर सब लोग मिले, कुछ चीज़ें डिस्कस की, भगवान से कुछ प्रार्थना की। तो वो क्या प्रार्थना थी और क्या चीज़ें डिस्कस की वो हम आगे देखने वाले हैं। द फेरी eloquence of young Shivaji. Shivaji was still quite young, but his mind was already busy planning big things. He opened his mind to his playmates and said, "My dear friends, today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time. My father Shahji Raje is a Sardar at the court of Bijapur. It is he who has given me the charge of this Jagir. Everything is going well and peacefully, but, friends, I am not happy. Must we always remain satisfied as bondmen of the Sultan? Must we always eat out of other people's hand? We are surrounded on all the sides by foreign kingdoms which are constantly at war. Our people get killed for nothing during these wars, and family after family gets uprooted. Our country suffers destruction, and what do we get out of all this? Nothing but slavery. How long shall we continue to tolerate this? How long shall we lay down our lives for others? Shall we allow this to continue just for the sake of a small watan? What have you to say about all this? Shivaji was speaking with great emotion and his face was red with anger. In the middle of his speech, he stopped and looked at his companions. The young Mauras gathered there in the inner sanctum of Raireshwar were greatly thrilled by Shivaji's speech. They had seen a new vision. One of them said, "Our young prince tells us clearly whatever is in your mind. We are prepared. We are anxious to do your bidding." "Yes, Raje," they all said with one voice. "We are with you. We shall do whatever you say at the cost of our lives if need be." तो देखिए यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि शिवाजी महाराज जो है वो पुणे की जो जागीर है वो संभाल रहे थे। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ये फोटो आप देख रहे हो कि फोटो में दिखाई दे रहा है कि लॉर्ड शिवा के टेम्पल में रायरेश्वर में, ठीक है, तो रायरेश्वर के टेम्पल में जो है शिवाजी महाराज महाराज के सामने देखिए सब साथ में मावड़ेज जो है वो भगवान के सामने पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। जैसे कि शिवाजी राजे ने कहा कि जो उनके फादर है शाहजी राजे वो बीजापुर की कोर्ट में एक सरदार है और ये जो जागीर दी गई थी पुणे की जागीर शिवाजी महाराज को संभालने के लिए, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों से ये कहा कि वो खुश नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कब तक हम सुल्तानों की गुलामी करते रहेंगे, कब तक अ, हमारे जो लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जो है वो बिना किसी रीज़न के मारे जाते हैं और फैमिलीज जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो ये कंट्री जो है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन के लेवल पे आ चुकी है, क्योंकि अलग अलग किंगडम्स, फॉरेन किंगडम्स जो है जो उस टाइम पे इंडिया में थे, देवर कॉन्स्टेंटली एट वॉर, और इस वजह से हमेशा जो है हर वहाँ इंडिया में रहने वाले जो लोग थे उनके ऊपर हमेशा ये लटकती तलवार थी कि कब वॉर पे चले जाना पड़े और कब जो है
कि किसी की भी मौत हो जाए। और इस वजह से ये हुआ कि हमेशा देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि नथिंग बट स्लेवरी। तो स्लेवरी जो है ये सबसे ज़्यादा चलती थी उस टाइम पे। कब तक ये सहन करेंगे, ऐसा शिवाजी महाराज ने कहा। कब तक हम दूसरों के इशारों पर जो है हमारी ज़िंदगी जीते रहेंगे, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब ये स्पीच शिवाजी महाराज अपने दोस्तों के साथ सामने दे रहे थे, तो उस टाइम पे उनका फेस जो है बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुका था, बहुत गुस्से में थे वो। ये स्पीच जब उन्होंने दी तो उस टाइम पे महाराज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गए और उन्होंने कहा कि हम लोग राजे के लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, हम हमारी जान भी दे सकते हैं। तो राजे जैसा बोलेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार है। ठीक है। तो सारे कंपेनियंस जो थे उनके, तो उन्होंने शिवाजी राजे का जो भी उनके डिस्कशन में जो भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, तो उसके लिए उन्होंने सबने हाँ में हाँ मिलाई। आगे देखते हैं कि द ओथ ऑफ स्वराज, शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स। Looking at each one of them, he said, friends, our path is clear. We shall all strive to attain our ideal, work for it till it is achieved. All should be ready even to sacrifice their lives for this ideal, which is हिंदवी स्वराज। तो देखिए यहाँ पे सबसे मेन मोटो जो था दैट इज हिंदवी स्वराज, इसके बारे में बात की गई है। शिवाजी महाराज ने ये क्लियरली अपने दोस्तों से बोल दिया कि हाँ, हम लोग हमें जो अचीव करना है उसके लिए अगर हमें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करनी पड़े तो वो भी चल जाएगा, लेकिन हम हिंदवी स्वराज स्वराज जो है वो किसी भी हालत में पाकर रहेंगे। वी विल हैव आवर ओन राज, योर्स एंड माइंस एंड एवरीबॉडीज। वी रिफ्यूज टू लिव एज स्लेव्स एनी मोर, मतलब कि हम लोग अभी स्लेव की जिंदगी और आगे से कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेट अस टेक दिस ओथ विद लॉर्ड रायरेश्वर एज विटनेस। वी गिव आवरसेल्व्स completely to the great task of establishing our own Raj Swaraj. The temple echoed the words of Shivaji. God thinks that this kingdom should take shape as Hindavi Swaraj. We shall see that God's wish is fulfilled. तो उन्होंने कहा कि ये भगवान की भी इच्छा है कि हिंदवी स्वराज मिले, तो हम भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए हम हमारी जान तक न्यौछावर कर देंगे। So the Mauryaas left the temple committed to the oath of freedom of Swaraj. The mind of Shivaji was filled with great joy. As soon as he reached Pune, he went straight to Lal Mahal to see his mother. He described to her all that took place at Raireshwar. Overjoyed, Jizabai thought with satisfaction that Shivaji would accomplish what was always in his mind, what was always in her mind. तो देखो, जैसे ही वहां से निकले शिवाजी राजे जो है वो पुणे जागीर में पहुंचे, सीधा लाल महल में गए, अपनी माता को, जीजाबाई को उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि हम लोगों ने इस तरीके से ऐसे ऐसे रायरेश्वर टेम्पल पे ओथ ली। और ये देखते हुए जीजाबाई को लगा कि हाँ, जो जीजाबाई का सपना था इतने सालों से कि स्वराज मिले, अब वो शिवाजी महाराज जो है वो पूरा करेंगे। Preparations in the Mawar Valley. Shivaji soon got busy with his new activities along with his comrades. He started intensive training in swordsmanship, riding, exploring the secret paths in the hills, and getting familiar with general topography of the land, its valleys and ghats, and possible communication routes. तो देखो बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर प्रिपेयर होनी शुरू हुई थी, मतलब कि शिवाजी महाराज ने अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी शुरू की, जैसे कि अपने जो कॉमरेड्स थे, जो जवान थे या जो मावर्स थे, उनके साथ में मिल के स्वॉर्ड तलवारबाजी, घुड़सवारी, सीक्रेट पाथ्स, मतलब कि जो खुफिया रास्ते होते हैं हिल्स में से, लैंड किस तरीके का है, वैलीज किस तरीके की है, घाट्स में से किस तरीके से कम्युनिकेशन रूट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ढूंढना शुरू किया और इसमें काम करना शुरू किया। He won over the Mavaras who became his most devoted followers, willing to lay down their lives for him at any time. Shivaji's enthusiasm increased a thousandfold. Shivaji made a detailed survey of all the forts and military establishments in the area. शिवाजी महाराज ने एक डिटेल सर्वे किया, जितने भी फोर्ट्स थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स थी आसपास के एरिया में, उन सारी चीज़ों का सर्वे करते हुए सारी चीज़ों की डिटेल्स जो थी उन्होंने उसकी सर्वे की।
इन दिस हिज फॉलोअर्स वर ऑफ ग्रेट हेल्प। जो फॉलोअर्स थे ये काम करने में उनकी बहुत मदद करते थे। सीक्रेट पाथवेज उन्होंने बना लिए थे ये सारी चीज़ें काम करते करते। अंडरग्राउंड रूट्स बना लिए थे, एम्यूनिशन डम्प्स एंड सेलर्स। ये सारी चीज़ें जो थी शिवाजी महाराज ने धीरे धीरे करके बिल्डअप करना शुरू किया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन मावड़। ऑल ओवर द 12 मावड़्स देयर वर देशमुख्स गार्डिंग देयर इंडिविजुअल वतन्स, गिफ्टेड लैंड इन lieu ऑफ सर्विस, टू विच दे वर मोर अटैच्ड देन एनीथिंग एल्स। तो there were there were constant quarrels between them, leading to useless waste of money and manpower. Shivaji saw this waste and decided to put an end to it. He would visit the Deshmukhs in the area, talk to them, persuade them to desist from their folly and raise before them a very attractive picture of the Swaraj of his dreams. He thus won many of them over to his side. He used force against those who were adamant. तो देखो जो देशमुख थे, जो वतन को गार्ड करने वाले इंडिविजुअल्स थे, वो हमेशा अपने वतन से ज़्यादा जुड़े हुए थे, उनको ज़्यादा प्यार था वतन से। तो वो वतन को छोड़ना नहीं चाहते थे, साथ ही साथ इस वजह से तो यहाँ पे देशमुख हमेशा जो है हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। बहुत सारा इसमें पैसा वेस्ट होता था, मैन पावर जो है यूजलेस वेस्ट ऑफ मैन पावर वाज आल्सो देयर। सो इससे देखो ये क्या हुआ कि शिवाजी महाराज ने अलग अलग देशमुख के यहाँ पे विजिट करना शुरू किया, जहाँ से वो मावास जो थे वो गैदर करना शुरू किया था उन्होंने। अगर कोई देशमुख मना करता है या अपोज करता है कि हम लोग स्वराज में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उनको फोर्सफुली जो है शिवाजी महाराज फोर्स करते थे और उनको अपनी साइड में कर लेते थे। देखा जाए तो बहुत सारे देशमुख जो थे वो शिवाजी महाराज की इस ड्रीम को पूरा करने में उनका साथ देने के लिए तैयार हो चुके थे। आगे देखते हैं कि एवरीबडी वॉज प्लीज्ड with his happy result and all started singing the praises of Shivaji. झुंजाराव मारळ, हैबतराव शिळमकर, बाजी पासळकर, विठोजी शितोळे, जेधे, पायगुडे, बंदाळ were some of the Deshmukhs in the Mawar Valley who began to look upon Shivaji as their leader. The dream of Swaraj was fast approaching the day of fulfillment. Okay. शिवाजीज रॉयल सील। अब देखिए यहाँ पे अगर इतने सारे लोग जुड़ चुके थे तो अब आगे और चीज़ें एडवांस होने वाली थी। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि द रॉयल सील, the Jagir was already being administered in the name of Shivaji. Shahji Raje had cast a special royal seal for Shivaji. तो जो जागीर थी इट वाज ऑलरेडी एडमिनिस्टर्ड बाय शिवाजी, और शाहजी राजे ने एक स्पेशल रॉयल सील जो है वो शिवाजी महाराज के लिए जो है वो भेजा गया था। This seal will grow in splendor like the new moon. This seal of Shivaji, the son of Shahaji, receiving homage from the whole world, denotes the welfare of people. This royal seal, in a way, foretold the foundation of Swaraj. तो ये जो रॉयल सील है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था, ये माना जाता था फाउंडेशन ऑफ स्वराज के लिए, ताकि इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लिखी गई थी। ये माना जाता था कि स्वराज जो है इस रॉयल सील से एक स्पेशल प्लेस मिल सकती है। इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द रॉयल सील्स वर कार्व्ड इन पर्शियन, शिवाजीज वॉज इन संस्कृत। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज। जो रॉयल सील था वो संस्कृत में लिखा गया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन रिलीजन। तो शिवाजी महाराज जो थे वो सोचते थे कि अगर स्वराज मिलने ही वाला है तो वो, हाँ, अगर हम रॉयल सील अगर बना रहे हैं तो वो हम हमारी खुद की लैंग्वेज में होना चाहिए, हमारे खुद के रिलीजन में होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी अ हेटेड फॉर अदर रिलीजन्स। तो साथ ही साथ दूसरे रिलीजन्स के लिए कोई हेट नहीं है, हम हमारी लैंग्वेज में बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लैंग्वेजेस अच्छे नहीं है।
The seal was a guarantee to all the Mauryaas that Shivaji's government was for the welfare of the people. तो सील क्या गारंटी करता था कि जो मावराज है या जो शिवाजी की गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए काम करती है. ठीक है. They were quick to grasp this point. With this we have completed the lesson number 6. I hope the video was useful, easy. अगर सबको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. चलिए बाय बाय. थैंक यू. टेक केयर.